Hello, everyone, and welcome back to Fauji Days. Today, we are extremely honored and proud to invite and welcome Mrs. Swapnil Pandey, national best-selling author of 3 books, with us here on Fauji Days. Welcome, ma'am. Welcome to Fauji Days. We're so happy to have you here. Thank you for inviting me here. It's an absolute honor for me as well to be sitting here with you. You are also doing a tremendous work in the field Thank of you literature. so much, ma'am. So kind of you. So, ma'am, I'm really happy that we're talking when your 5th book is out, and it's called Wings of Valor, Indian Air Force's Daring Operations. And just like your past couple of books that we have read, which is Balidan and The Force Behind the Forces, this book My also... non-fiction. Non-fictions. This book also covers some wonderful stories of valor, of sacrifice, of contributions of our Indian Air Force. So why do you feel this book had to come out, had to be written, and why did you pick the Indian Air Force this time? See, as a storyteller, I think it is my duty to bring forward the unsung stories, the stories which belong to the soil of this nation. Somebody has to, this is my job, somebody has to bring it forward before the next generation, the youngsters of our nation. And the stories are the most important assets of any nation or any civilizations, Mehak, I would say, because these are the stories which have power to inspire entire generation. If you think about it, Srimad Bhagavad Gita, Sri Guru Granth Sahib Ji, Holy Quran or Bible, these are all books, these are all stories of different eras and time, and the kind of impact they have left on civilizations. Even in today's time, we worship those books and we derive so much of hope and courage from those books. So these books are again similar kind, because my books are filled with the piousness of the sacrifices our soldiers have made for this nation. जो जवान होते हैं अपने घर जाते हैं, they take my book and show it to their जो उनके पड़ोसी हैं या उनके गांव वाले हैं कि ये हम हैं, ये हम कर रहे हैं. तो in many ways I am also the voices of our soldier, जो उनकी अनसंग कहानियां हैं. साधारण सैनिकों के बारे में लिखती हूँ मैं, महक. मैं बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या बॉलीवुड फोक या क्रिकेटर्स के बारे में नहीं लिख रही हूँ. हमारे जो साधारण सैनिक हैं, जिन्होंने असाधारण कुर्बानियां दी हैं, कष्ट सहे हैं हमारे लिए, मैं उनकी कहानियां जनता के सामने रखती हूँ. और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है कि मैं अच्छी कहानियां लेकर के आऊँ और लोगों को और ये सच्ची कहानियां हैं. सो इनका एक अलग लेवल हो जाता है इन ट्रू स्टोरीज का. अलग लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस है, मैम. अलग लेवल ऑफ, बिकॉज ये आपकी हिस्ट्री का हिस्सा हो गई अगर ये ट्रू स्टोरीज हैं. बिल्कुल. कि हमारे देश के बच्चे खास तौर पे पढ़े. हालांकि बुक इज फॉर एवरीवन, बट आई रियली विश कि आई कवर एज मेनी फोर्सेज एज पॉसिबल. उसी कड़ी में इंडियन एयरफोर्स, बिकॉज मैंने 4 किताबें आर्मी के ऊपर लिखी हैं, फिक्शन नॉन फिक्शन बोथ, दोनों पहलू लेकर के आई हूँ मैं. सो इसलिए एयरफोर्स, बिकॉज इसके बारे में पहले चर्चा भी बहुत नहीं थी और किताबें तो बहुत ही कम है इंडियन एयरफोर्स के ऊपर. दिस इज ऑल अबाउट राइटिंग विंग्स ऑफ वैलर. लवली लवली. सो मैम, जो ये आपकी अभी तक ऑथर की जर्नी रही है, आपने एंड मैंने भी फर्स्ट हैंड, और इनफैक्ट आपके आसपास जितने लोग हैं हमने देखा है, हमने फर्स्ट हैंड देखा है कि आप लिटरली एक एक बंदे से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी कहानी जानते हैं, समझते हैं और फिर लिखते हैं, राइट? सो दिस प्रोसेस इज नॉट ईजी. सो व्हाट इज दैट फायर और दैट व्हाट ड्राइव्स यू टू मेक श्योर कि यू डू दिस डे इन डे आउट? Writing a book is over. I think this book has taken you almost 2 years to write. So it's not an easy job. So what drives you? As a storyteller who is being read by so many people, मेरी एक growing responsibility होती जा रही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अनसंग कहानियाँ, खूबसूरत कहानियाँ जिसमें वाकई प्रेरणा हो. अच्छा, कहानी के कई पहलू हो सकते हैं. बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप कुछ नेगेटिव कहानी भी लिखो, बट वो मेरा फोटे नहीं है. मैं अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल लोगों को प्रेरित करने में ही करना चाहती हूँ. हर तरह की कहानियां होती हैं. आजकल डिजिटल मीडिया में वैसे भी बहुत नेगेटिव नैरेशन है ना, हेट के, वायलेंस के, जो आपको डिप्रेस और सैड कर देंगे. बट somebody needs to write positive stories which really give people hope and inspiration. And I think the definition of real heroes is also has to change. It has to go through a change of who we look up to when we talk about absolutely, and people need to know who their real heroes are. And also, as I mentioned,
the noise is very negative around youngsters these days through digital media. They have access to all kind of datas and True. stories. So somebody needs to bring forward the positive stories, great stories of our great nations. मिट्टी की कहानियां है ना, लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपने ब्रदर इन आर्म्स के लिए फाइट करी है. They have gone against grave odds, taken great परेशानियां, पेन लिया है देश सेवा के लिए. तो ये हमारे रियल हीरोज हैं. तो आई थिंक कि लोगों को रियल हीरोज क्या होते हैं, कौन होते हैं, ये भी जानना जरूरी है. और ऐसी कहानियां आप किसी भी प्रोफेशन से जुड़े रहे, जरूरी नहीं कि आप फौजी ही बने, आपको आपकी जिंदगी में भी आपको अपनी परेशानियां कम लगती हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं. तो ये ऐसी कहानियां हैं. बिल्कुल. और दूसरा पार्ट ये है कि मुझे लगता है कि वी ऑल आर डेस्टिन्ड टू प्ले आवर पार्ट. वी ऑल आर पिक्ड बाय गॉड्स टू डू व्हाटएवर वी आर डूइंग. आई एम सो ग्लैड दैट यू आपने इसको एज अ ड्यूटी और एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रीट किया, यू नो. एंड आई थिंक आपने राइटली बोला कि शायद दैट्स द थिंग दैट ड्राइव्स यू, यू नो, बिकॉज यू कंसिडर इट योर ड्यूटी, नॉट जस्ट something that you're just doing for the sake of it. You're doing it with all your heart, with all your willpower, everything that it takes. And I think that's lovely. Even coming all the way to Chandigarh, man, this is not a small thing. Just to make sure that your book is there, it's for readers. That's also another responsibility altogether. So very, very inspiring on that front. And ma'am, जब हमने अभी बात करी है इंडियन एयरफोर्स के बारे में, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑल्दो ये बात शायद सच नहीं है, बट लोगों के जहन में अभी तक उनको पता नहीं था कि हमारी इंडियन एयरफोर्स की इम्पोर्टेंस क्या थी. ऑपरेशन सिंदूर के होते हुए अब इसकी इम्पोर्टेंस सबको समझ आनी शुरू हुई है, उसके बारे में चर्चा बहुत बढ़ गई है. सो इट्स नॉट जस्ट बीइंग ट्रीटेड एज सपोर्ट आर्म, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग आर्म इन इटसेल्फ एंड इट इज़ केपेबल विद इन इटसेल्फ टू डू व्हाटएवर इट टेक्स. तो आप क्या कहना चाहते हैं आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर एंड नाउ द फैक्ट दैट यू हैव इंक्लूडेड अकाउंट्स ऑफ ऑपरेशन सिंदूर इन दिस बुक? व्हाई डू यू थिंक, हाउ डू यू थिंक द नैरेटिव हैज़ चेंज्ड एंड व्हाई वाज इट इम्पॉर्टेंट टू ऑल्सो इंक्लूड ऑपरेशन सिंदूर इन योर बुक? इंडिया में देखो, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हम कहते हैं ना, भारतीय सेना, सशस्त्र सेना, भारतीय सशस्त्र सेना या इंडियन आर्म फोर्सेस, ये 3 सर्विसेज से मिलके बनती है. इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी. और इन तीनों सर्विसेज का अपना अपना रोल है और इनकी अपनी रिक्वायरमेंट है, तभी ये सशस्त्र सेना का एक हिस्सा है. जैसे जल पे लड़ाई करने के लिए इंडियन नेवी करेगी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स नहीं जाएंगे. अगर वायु में लड़ना है आपको, तो एयर बैटल्स आपकी एयरफोर्स करेगी, और जमीन पे लड़ना है थल सेना, तो आपकी इंडियन आर्मी फाइट करती है. तो अभी क्या होता है कि जैसे आपके जो पीओके वगैरह के जो सीज फायर ऑपरेशंस हो गए या काउंटर इंसर्जेंसी के जो ऑपरेशंस इन्फिल्ट्रेशन के होते रहते हैं, क्योंकि वो लोकल ऑपरेशंस होते हैं और वो रोज की ही समस्या रहती है, तो हम थोड़ा न्यूज में इंडियन आर्मी को ज्यादा देखते हैं, तो लोगों को अवेयरनेस ज्यादा है. मैंने भी जैसे 4 किताबें आर्मी के ऊपर ही लिखी. बट क्या होता है ना, समय और एरा होता है महक. अभी क्या हो रहा है कि विद द चेंजिंग जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, आप देखो कैसे ना, आप इजराइल और आप पैलेस्तीन की बात कर लो, रशिया यूक्रेन, डायनामिक्स कैसे चेंज हो रहा है ना जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, डे टू डे. टेक्नोलॉजी इंटेंसिव ये वॉर होती जा रही है, हाइब्रिड वॉरफेयर की तरफ हम बढ़ चुके हैं ऑलरेडी. सो अभी जैसे आपने पूछा कि इंडियन एयरफोर्स के बारे में अभी ज्यादा बज है, उसका रीजन वही है कि नाउ वी हैव एंटर्ड अ न्यू एरा वेयर the wars have gone hybrid and it has got वो 1-to-1 फाइटिंग से कहीं ज्यादा जो मास एरिया बॉम्बिंग, मास डिस्ट्रक्शन की जो चीजें हैं ना, बैटल्स जीतने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट, उसका एक्सेस होना और उसमें सुप्रीम पावर होने की ज्यादा जरूरत हो गई है. बिकॉज आजकल टेक्नोलॉजी हर नेशन के पास है. हमारी एनिमी नेशंस भी, देयर इज अ रीजन कि हम ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट क्यों अक्वायर करना चाहते हैं, ज्यादा शिप्स क्यों अक्वायर करना चाहते हैं. इवन तो हमारी एयर बैटल्स रोज नहीं हो रही है, हमारी नेवी की बैटल रोज नहीं हो रही है, यू नो, लास्ट 1971 में हुआ था, बट स्टिल उस पे जो हमारा बजट रहता है वो खास रहता है, क्योंकि एक तो वो आपकी देश की कितनी ताकत है वो बताता है दुश्मनों को कि अगर आपने हमारे साथ, तो हमारे पास इतने एरिया डिस्ट्रक्शन के, मास डिस्ट्रक्शन के इतने हमारे पास हथियार हैं, वो आपकी ताकत को दर्शाता है. दूसरा, विद द चेंजिंग टाइम वॉर हैज गॉन टेक्नोलॉजी इंटेंसिव, हाइब्रिड वॉरफेयर, एंड उसमें इंडियन एयरफोर्स का रोल आप देखो सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव है. बिकॉज अभी जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें इंडियन एयरफोर्स ने क्या अचीव किया है, उसने ये अचीव किया है कि पाकिस्तान के मेन लैंड्स में, हमारे दिल्ली पे तो नहीं अटैक हुआ ना, बट पाकिस्तान के मेन लैंड पे हमारी इंडियन एयरफोर्स के पास ताकत है कि वहां जाकर उनके मुरीद के और बहावलपुर जैसे टेररिस्ट कैंप जहां पे मसूद अजहर रहता था,
और जहाँ पे इनके जो हमारे 26/11 और पठानकोट टेरर अटैक में जो टेररिस्ट रहे हैं, अजमल कसाब एंड ऑल, इनकी जो ट्रेनिंग हुई है, तहव्वुर राना और ये सब जो डेविड हेडली वगैरह, ये सब उन्हीं टेररिस्ट कैंप्स में ट्रेन हुए हैं। वहाँ पे इनके मेन लैंड पे इंडियन एयरफोर्स उसको डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती है। तो ये एक तो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जो एयर वल्नरेबिलिटी है वो एक्सपोज हो गई है कि भाई इंडियन एयरफोर्स की आप जद में है, आपको हम जब चाहें, ये तो वार्निंग ही था। उन्होंने फुल मुझे जो इंटरव्यू दिया है, जैसे मैं आई वाज रियली प्रिविलेज्ड दैट फॉर ऑपरेशन सिंदूर, मतलब ऑथेंटिकेटेड अप्रूव्ड अकाउंट होना है जिसके साथ इंडियन एयरफोर्स स्टैंड कर रही है। मतलब कई आर्टिकल्स हैं, सोशल मीडिया पे रोज ही डिस्कशन होता है, बट इंडियन एयरफोर्स इज नॉट स्टैंडिंग बाय इट, वो कोई भी बोल सकता है। बट विथ इन अ बुक वेयर इंडियन एयरफोर्स इज स्टैंडिंग बाय इट कि भाई हमारा वर्जन ये है ऑपरेशन सिंदूर का। तो आई वॉज वेरी प्रिविलेज कि डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, मतलब एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती जो तब डीजी एयर ऑपरेशन थे, उनके फर्स्ट हैंड अकाउंट पे बेस्ड इसमें ऑपरेशन सिंदूर का अकाउंट है। एंड ही सेड कि हमने तो मतलब टेरर कैंप्स को टारगेट किया था, बट उसका रिप्लाई कहाँ से आया? पाकिस्तानी मिलिट्री दे रही है। तो बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच की जो बाउंड्रीज है वो भी डिसॉल्व हो गई। दूसरा, हमने इनको बता दिया कि भाई आपकी मेन लैंड्स भी हमारी जद में है और यू आर वल्नरेबल टू एयर अटैक्स, सो दैट पुट्स दिस फोर्स एट द फोर फ्रंट। यू नो, रफेल जब हवा में उड़ते हैं, देखो क्या गर्व आता है ना, आपको लगता है कि भाई दुश्मन दहल जाते हैं, डरते हैं। So this is all about Air Force. It's a as a storyteller, I would say it's a very mystical, mythical, legendary तो है ये, I would say. है ना, legendary तो है। एंड नेक्स्ट जनरेशन वही टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है, हाइब्रिड है। सो इंडियन एयरफोर्स मतलब युद्ध जीते जाएंगे कि नहीं जीते जाएंगे ना, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, बट युद्ध जो जीतते हैं ना वो आप वायु सेना की कितनी स्ट्रांग है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। कारगिल में भी आप देखो, इसको गेम चेंजर बोला गया। जब भारतीय वायु सेना जाती है तो वो जंग खत्म करने के लिए जाती है। And I'm glad the narrative is changing, man. Narrative is changing now. People are realizing because उनको लाइव मिला ना ऑपरेशन सिंदूर में, they could see First hand दिखा गया ना, आपने वही ड्रोन्स चीज़ की है। लड़ाइयाँ देख ली, आपने फाइटर्स की लड़ाइयाँ आपने देखी कि वो कैसे हो रही हैं हवा में, आपको नीचे नहीं पता चल रहा है, बट वो कितनी गंभीर लड़ाइयाँ, इफ यू थिंक अबाउट इट। बट देखो भारतीय वायुसेना, चाहे अभिनंदन के टाइम की हो कि मिग से आप F-16 को गिरा देते हो, या आज भी अगर हम ऑपरेशन सिंदूर को अगर हम जीत पाते हैं और हमारी जीत बतला रहे हैं, तो इट इज बिकॉज इंडियन एयरफोर्स आपकी बहुत केपेबल है। इट कैन लुक आफ्टर द नेशन, इट कैन प्रोटेक्ट द नेशन, और जो भी इसका रोल है ये बहुत ही जिम्मेदारी से निभा रही है। आप इसके एयर डिफेंसेस को देख लीजिए, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, बट the way it has been handled by Air Force, the way the attacks have been carried out, इतने planned थे, precision attack थे। मुझे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बता रहे थे कि जिस आर्सेनल में से हमने अपने वेपन चूज किए हैं, उसी आर्सेनल में हमने प्रेसिजन अटैक किया, हमने पिन पॉइंटेड अटैक किया, बट उसी आर्सेनल में हमारे पास एरिया बॉम्बिंग और मास डिस्ट्रक्शन के भी वेपन थे। बट वी वर सो रिस्पॉन्सिबल अबाउट इट कि हमने कम से कम जो नेसेसरी था उतना जो हमने उतना ही किया। बट हमारा वो एक स्टेप इनको ये भी दिखा रहा है कि मेनलैंड पे हमने प्रेसिजन अटैक करके इनको बस मैसेज दिया है कि वी आर केपेबल ऑफ अ लॉट मोर। You've also mentioned, आपने डिटेल में कुछ स्टोरीज गरुड़ स्पेशल फोर्सेस की भी कवर की हैं। अगेन इट इज़ वन फोर्स दैट इज़ नॉट सो वेल नोन, नॉट सो वेल कवर्ड, नॉट सो मच टॉक्ड अबाउट, टू बी ऑनेस्ट। सो आई नो इट इज़ योर forte to bring out these stories, but what is it that made you also want to write about them? सी, पहले तो मुझे ना अनसंग स्टोरीज, एक्सक्लूसिव स्टोरीज बहुत बड़ा किक देती है मेरी राइटिंग जर्नी में। अगर वो स्टोरी वेल कवर्ड है ना, तो मेरा आधा एंथुजियाज्म तो ऐसे ही चला जाता। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कुड पुल गरुड़ स्पेशल फोर्सेस फॉर एन एविएशन बुक, फॉर अ बुक ऑन इंडियन एयरफोर्स, बिकॉज इसके पहले जो भी थोड़ी बहुत किताबें लिखी गई हैं इंडियन एयरफोर्स के ऊपर, उसमें गरुड़ नहीं मेंशन्ड है। 2004 की फोर्स, उसका बहुत बड़ा रीजन तो यही है कि बीइंग अ स्पेशल फोर्स बहुत ही कोवर्ट आर्म है ये इंडियन एयरफोर्स की। और कोवर्ट में भी इनका जो प्रिसाइज काम होता है, इट इज टू प्रोटेक्ट द एयर बेसेस एंड जो एयर ऑपरेशंस को एक्सपैंड करते हैं, जस्ट नॉट द कि प्रोटेक्टिंग द एयर बेस,
just one of the charter है इनका, like any special forces they are meant to do special operations of Indian Air Force. जैसे कि आपने सुना होगा कि अगर पायलट, मुझे इंटरव्यूज के टाइम में कई गरुड़ फोर्सेस ने बताया, बुक में नहीं लिखी है बट ऐसे मैं पॉडकास्ट में बता सकती हूँ कि उन्होंने बताया कि जैसे विंग कमांडर अभिनंदन, उनका चार्टर क्या होता है वो समझाने के लिए बता रही हूँ मैं आपको, कि विंग कमांडर अभिनंदन को जब कैप्चर किया था तो गरुड़ स्पेशल फोर्सेस तैयार खड़ी थी कि अगर उनको एनिमी लाइन क्रॉस करना होगा और उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा तो They are हम all करेंगे। ready. तो ये स्पेशल फोर्सेस, गरुड़ स्पेशल फोर्सेस का काम है। अगर एनिमी नेशन ने हमारे देश के ऊपर अटैक कर दिया और सपोज करो एयर स्ट्रिप को डैमेज कर दिया, एटीसी पे कंट्रोल कर लिया, सो नाउ बिना एटीसी के आपके जहाज नहीं उतर सकते, आपके ट्रूप्स नहीं आ सकते। नाउ गरुड़ स्पेशल फोर्सेस आर ट्रेन्ड टू हैंडल दैट एटीसी, मैनेज दैट एटीसी। और आपको बहुत ही एक्साइटिंग लगेगा ये जान के कि जब आपके फाइटर जहाज जाते हैं ना, आपके रफाल और तेजस जब हवा में उड़ रहे होते हैं, तो गरुड़ को ऐसे भी ट्रेन किया जाता है कि वो उन फाइटर एयरक्राफ्ट को, जो कि इतनी बड़ी बड़ी बॉम्बिंग करते हैं और सब खत्म करने की ताकत रखते हैं, उनको ये एरिया गाइडेंस भी देते हैं। इनके पास कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, इनकी ट्रेनिंग कुछ खास होती है, जहां वो फाइटर एयरक्राफ्ट को एग्जैक्ट प्रिसाइज टारगेट की तरफ लोकेट एंड गाइड कर सकते हैं। इनके चार्टर ऑफ ड्यूटीज, ये हैं कौन, सब कुछ बताया। इनकी फैमिलीज भी लेकर के आई हूँ मैं। अब वो जो एक एंगल होता है कि भाई जो योद्धा दिख रहा है, योद्धा के पीछे का इंसान कौन है, वो भी लेकर के आई हूँ मैं। तो बहुत बहुत गहरी रिसर्च, और मैं इंडियन एयरफोर्स की भी बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने कंसिडर किया। तो मैम, जो आपने डिफरेंट फोर्सेस टच कर ली है, सो अब नेक्स्ट नेवी पे टच होने का इरादा है? दैट्स द वन फोर्स यू हैव नॉट टच्ड अपॉन। आई रियली विश मैं तो जितनी फोर्सेस हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे आपका बीएसएफ हो, चाहे आपकी नेवी हो, पुलिस हो, अगर आप मुझे अलाउ करो, मेरी कैपेसिटी भगवान मुझे इतनी दे दे कि मैं सब लिख दूं, बट वो पॉसिबल नहीं होता है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, आई एम ओनली अ मीडियम। जैसे आप एक मीडियम है एक चीज के लिए, मैं मेरी एडिटर्स कुछ और रोल प्ले कर रही हैं, मैं एज अ लेखक कुछ और रोल प्ले कर रही हूँ। तो मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ जो इन कहानियों को इस दुनिया में लेके आने की ताकत रखती है। तो अब ये मालिक डिसाइड करते हैं, क्योंकि मैंने अपनी 10 साल की जर्नी में मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताती हूँ। मैंने ये भी देखा है कि कई बार मैंने कई कहानियां लिखने की कोशिश करी हैं, पर वो नहीं हो पाई हैं। लाख के बावजूद हर चीज जुड़ गई, वो कहानियां नहीं लिख पाई। और जो कहानियां, कई कहानियां मैंने सोची, मुझे पता भी नहीं है, और वो कहानियां हो गई हैं बिकॉज मालिक चाहते थे। और जिसके हाथ में यश लिखा होता है, जिस कहानी को दुनिया के सामने आना है, वो अपना रास्ता ढूंढ लेगी। मैं सिर्फ माध्यम हूँ। जैसे इसी किताब में देवघर केबल कार रेस्क्यू के बारे में लिखा है, मेरा चैप्टर 2 है विक्स ऑफ वैलर में। बहुत ही थ्रिलिंग गूज बम्प वाली कहानी है, इफ यू रीड अबाउट इट। उसमें 12 केबल कार में 48 लाइव्स, हेलीकॉप्टर पायलट ग्रुप कैप्टन कंदलकर एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजपाल यादव और जो उनकी पूरी क्रू और टीम थी, मतलब हवा में लटक के उन पे ऐसे स्टंट दिखा के 48 जिंदगियां बचाना। टिम्बर ट्रेल ऑपरेशन हुआ था 90s में, कुछ उससे सिमिलर। उसमें एक केबल कार से 10 बचाए गए थे। इसमें 12 केबल कार से 48 लाइफ, 48 बार इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली है। बट मुझे नहीं पता था महक इस कहानी के बारे में। बट क्या हुआ कि जब मैं एयर चीफ मार्शल चौधरी के टाइम मैंने ये बुक शुरू करी थी, और बुक बहुत टाइम लेती है रीड, रिसर्च, राइट में ना। तो बाय द टाइम जब किताब आधी थी तो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कमांड ले लिया था। तो मैं जब उनसे मिली तो उन्होंने मुझे इस कहानी के बारे में बताया कि देवघर केबल कार आप ऑपरेशन क्यों नहीं कवर करते हैं। मैं गगनयान कवर करना चाहती थी, पर उन्होंने कहा कि देखो गगनयान हर कोई कवर करेगा। अब वो भी मेरी सोच से हम दोनों अलाइन कर रहे थे कि वी शुड कवर, गिव रिप्रेजेंटेशन टू दोज फोर्सेस, दोज स्टोरीज जिसको बाकी नहीं कवर करेंगे। और जो रीडर पढ़ना चाहता है उसको अगर अच्छी किताब है, अच्छी तरीके से एडिट की हुई, अच्छे कवर के साथ, अच्छे पेज के साथ अगर आप प्रोवाइड, जैसे आप साइंड कॉपी प्रोवाइड करा रहे हो, ये भी कितनी बड़ी सर्विस है ना। क्योंकि जब वो साइंड कॉपी एक रीडर को मिलती है तो कुछ नहीं तो वो स्माइल तो करेगा ना, उसका दिल कितना भर जाता होगा ना खुशी से कि अपनी फेवरेट ऑथर का यार मेरे पास साइन आ गया। वो कौन कर रहा है, वो आप कर रहे हो। सो हम सभी, इट्स अ सर्विस, राइटिंग बुक्स इज अ सर्विस। और इसके अलावा इसका कोई वर्जन नहीं होता है। देयर इज नो डिनाइल टू दिस फैक्ट। हम सभी इस इंडस्ट्री को डायनामिक रख रहे हैं और लोगों को किताबें पहुंचा रहे हैं डिजिटल एरा में। एब्सोल्युटली मैम, वो एक्चुअली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक श्योर दैट इट रीचेस पीपल एंड वी आर एबल टू मेक श्योर कि एटलीस्ट उनमें वो अंदर से एक बारी चाह तो आए कि यार
और पढ़ना है और समझना है, या क्यूरियोसिटी चाहे हम सिर्फ इग्नाइट ही करें, दैट्स आल्सो मोर देन हम ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं ना। मैं बुक्स और नॉलेज और बुक्स सिनोनिमस होते हैं ना। 100%। तो हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं, और बहुत कम में भी हमारे बहुत लाखों हमारे रीडर्स होते हैं जो पढ़ रहे हैं और अच्छी किताबें लेके और देशभक्ति से भरी लेके, तो इससे बड़ी सर्विस क्या ही हो सकती है ना। आप नेशनलिज्म फैला रहे हो एट द एंड ऑफ द डे। सो आई थिंक यस, Absolutely. दैट गिव्स अ लॉट ऑफ मीनिंग एंड पर्पस टू योर जॉब। या So, ma'am, एक last question that I want to say is, if there's one message that you want to give the readers, or maybe if there's one story that you feel जो इसमें अगर आपने बुक उठाई है तो वो story आप पढ़िए ज़रूर, what would be that one story or that one message you want to give the readers for this यार, book? मैं विंग्स ऑफ वैलर कैसी किताब है, आप एक स्टोरी मुझसे पूछ रहे हैं। आप देखो, ये वो विंग्स ऑफ वैलर ये किताब है जिसको एयर चीफ मार्शल एपी सिंह एंडोर्स कर रहे हैं। वो आ रहे हैं अपना कीमती समय निकाल कर, पूरी एयर हायरार्की आ रही है आपके। इसमें जो फर्स्ट हैंड नरेशंस हैं, एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती का नरेशन है, विंग कमांडर व्योमिका सिंह के नरेशन, जितने भी आपके जो एयर फोर्स के जो चेहरे हम देख रहे हैं जो देश के लिए इतनी सेवा दे रहे हैं, वो आकर के आगे बढ़ के इस बुक को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है इससे बड़ा रीजन क्या ही होगा, आप बताइए, इस किताब को पढ़ने के लिए। इसका हर चैप्टर पढ़ने लायक है, और हर चैप्टर बहुत डिफरेंट है, क्योंकि कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है ये। और मुझे लगता है कि जब आपके एयर चीफ कह रहे हैं, मतलब इसको इतना समय दे रहे हैं, आपके जो एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती जैसा चेहरा है, जो ग्लोबल अभी आज की डेट में एक मिलिट्री लीडर के रूप में इतने पॉपुलर हैं, विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो बहुत सारी लाखों लड़कियों को इंस्पायर करती हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी ट्रू स्टोरीज। हम कह रहे हैं कि भाई ऑथेंटिकेटेड अकाउंट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर है, ट्रू स्टोरीज है। अब आप इसको नहीं पढ़ रहे हो तो यू आर लूजिंग आउट ऑन समथिंग, यू नो। आई थिंक दैट शुड बी द एनफ रीजन। मैं it's been a really proud privilege and honor for me as well to be here and talk to you as a representative of 4G Days. This is also a service that you are doing, you know. जब signed copies, हम सब, मेरे बहुत सारे रीडर्स हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं कि साइंड कॉपीज मैम कैसी मिलेगा, और हम चाह के भी नहीं सप्लाई कर सकते हैं हर जगह। सो इन दैट नोशन अगर मैं बात करूं तो थैंक यू वेरी वेरी मच कि बिकॉज ऑफ 4G Days ये साइंड कॉपीज इतनी सारे रीडर जो बुक लवर्स है ना, उनके लिए बुक्स ही सब कुछ होता है, वो पेपर बैग की खुशबू, और उसमें जब वो साइंड कॉपी उनको मिलती है उनके फेवरेट ऑथर की, आप सोचो कितनी खुशी दिल में होती होगी। एंड इट इज़ अ सर्विस आई थिंक ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर की लिटरेचर की फील्ड में, पब्लिशिंग के फील्ड में आप जो कर रहे हैं। बुक्स तो आप दे ही रहे हैं, मतलब ज्ञान का प्रकाश तो आप फैला ही रहे हैं, हम लिखते हैं, आप सप्लाई कर रहे हैं, बट इतना पर्सनलाइज्ड और इतना मोटिवेशनल साइन करके लोगों तक पहुंचाना, उनके घरों में, कश्मीर में, कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में, आई थिंक दिस इज ब्यूटिफुल। Thank you for doing this. Ma'am, thank you so much for this lovely interaction. We wish you all the best for this book and your forthcoming books. And I'm very excited to see what comes more from you, these stories of valor that you're bringing. So thank you for bringing them out to the world. Thank you so much. Thank you, Mahek. Thanks a lot. It's been an honor and privilege to talk to you and be here at 4G Days.